and welcome to the NIRNAYA classes. Today we'll study about the chemical kinetics. So, what do you mean by chemical kinetics? Chemical means chemical reaction and the kinetics means motion or flow. So, in this chapter we'll study about the motion and flow of a chemical reaction. You know that some reaction are slow reaction and some reaction are fast reaction. Those chemical reaction which takes more time to complete are called as fast reaction, and those chemical reactions which take less time to complete are called as slow reaction. Okay, so there are two types of reaction here. One is slow reaction and another one is fast reaction. Slow reaction takes more time to complete and the first reaction takes less time to complete. So, why? The question is why the slow reaction takes more time to complete and the first reaction takes less time to complete. One factor is called as the rate of reaction. What we are going to study. Let us take an example. A gives B. This is the reactant and this is the product. ये आपका एक reactant है, ये आपका एक product. At time t is equal to 0, you have 10 mole of A. So initially there will be 0 mole of B. मतलब आपकी product formation नहीं हुआ बड़ा. At 10 second there is 0 mole of A and you have 10 mole of B. It means that it takes 10 seconds to complete the chemical reaction. It means in 10 seconds the 10 mole of A is completely converted to the 10 mole of B. So I am saying that if I am taking t is equal to 1 second, then it will be 10 minus 1 or product will be formed by 1 mole. 1 सेकेंड में क्या होगा आपका, ये जो रिएक्टेंट था 10 मोल, ये 1 मोल चेंज होगा, मतलब ये 1 मोल डिक्रीज होगा और साइमल्टेनियसली 1 मोल का क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर at t is equal to 1 सेकेंड आपको मिल जाएगा 9 मोल ऑफ A एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा 1 मोल. साइमल्टेनियसली at t is equal to 2 सेकेंड there will be 8 mole of A and there will be 2 mole of B, and at 10 second we will have 0 mole of A and 10 mole of B. It means that total time taken to complete the chemical reaction is equals to 10 seconds. It means in 10 seconds 10 mole is completely converted to 0 and 0 mole of B is completely converted to 10 mole of B. It means if I am saying that per unit second t is equal to 0 से जब t equal to 1 second आया तो आपके रिएक्टेंट में 10 मोल था, अब डिक्रीज होकर 9 मोल आ गया, तो चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 मोल. प्रोडक्ट भी आपके पास 0 मोल था, अब चेंज होकर 1 मोल आ गया, तो प्रोडक्ट में चेंज कितना हुआ 1 मोल. तो पर यूनिट सेकंड the change in amount of reactant or change in amount of product that is equals to our beta 1 mole. This is called as 1 mole per second. So this is called as rate of reaction. That means what is the rate of reaction? The definition will be the rate of change of concentration of reactant or product. आप reactant का change in concentration ले सकते हो या तो product का भी change in concentration ले सकते हो. तो rate of change of reactant or product concentration with respect to time is called as rate of reaction. तो बोल रहे थे बेटा कि यहाँ पर आपको A जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, आपका B बनाना है. तो A completely कन्वर्ट होके B बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा 10 सेकंड. तो 10 सेकंड में 10 मोल ऑफ A completely कन्वर्ट होके 0 मोल ऑफ A बना दिया और प्रोडक्ट आपका इनिशियली 0 मोल था, वो 10 सेकंड में कंप्लीटली कन्वर्ट होके कितना बना दिया 10 मोल बना दिया इधर. तो हमने बोला कि टोटल जो होता है वो 10 मोल कंप्लीटली कन्वर्ट होके 0 मोल बनाने के लिए 10 सेकंड लग रहा है. तो पर यूनिट सेकंड में अगर हम देखेंगे तो आपका चेंज हो रहा है 1 मोल पर सेकंड. दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन. तो हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज, मतलब जो आपकी पर यूनिट टाइम पर जो रेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा, रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, जितना चेंज होगा उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन का आपका डेफिनेशन आपको बोलते हैं कि
the rate of change of concentration of reactant or product with respect to time is called as rate of reaction. तो rate of reaction R is equal to होती है change in concentration of reactant with respect to time. This is called as rate of reaction. That is R is equals to delta C divided by delta T. इसके बारे में इस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे. तो बस आप अपना जानो कि चेंज इन कंसंट्रेशन को डिवाइड करना होता है चेंज इन टाइम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो एक रेट ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा है, मतलब कितने स्पीड से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और कितने स्पीड से आपका रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव आता है. रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव और फॉर ए केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो. ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. कोई भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है उसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू आती है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव. इट विल नेवर बी इज इक्वल टू जीरो और नेगेटिव. नेगेटिव और जीरो ये कभी नहीं आएगा. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है हमने बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन. तो नाउ अगर हम ग्राफ बनाते हैं with respect to time the concentration of reactant decreases. Now I am plotting a graph between the concentration of reactant and time period. So here I am plotting time on x axis and concentration of reactant on y axis. So this is reactant concentration and this is time on x axis. With respect to time, the amount of reactant will decrease. Initially, let the concentration of reactant is, and with respect to time, the concentration of reactant will decrease. Okay. So at time t1, the concentration of reactant is equal to C1. At time t2, the concentration of reactant is equals to C2. So now the rate of reaction R is equals to delta C divided by delta T. Delta C means change in concentration, delta T means change in time, that means time interval. So delta C C2 minus C1 divided by T2 minus T1. C2 is the final concentration here, C1 is the initial concentration here. Here C2 has the lower value and C1 has the higher value. When we subtract a lower value from higher value, the value will be negative. So here the value of C2 minus C1 is negative and T2 minus T1 is obviously positive. But we know that rate of reaction, the value of rate of reaction is always positive. So to make the rate of reaction positive, we multiply a negative sign here to make the rate of reaction positive. तो R is equals to delta C minus delta T जो आप लिखते हो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ किसको लेते हो, रिएक्टेंट का लेते हो. So when we considering the concentration of reactant, we have to multiply a negative sign to make the rate of reaction positive. Then let us plot a graph taking concentration of product between the concentration of product and time. This is the concentration of product and in x-axis I am putting time. So initially when time t is equal to 0, the amount of product will be equal to 0 and with time the amount of product will increase. The graph will be like this. So at t1 time the concentration will be equal to C1 and at t2 time the concentration will be equal to C2. Okay, so here at t1 time the concentration is equal to C1 and t2 time the concentration is equal to C2. Okay, now rate of reaction R is equals to delta C by delta T. That implies that delta C C2 minus C1, the C2 minus C1 divided by T2 minus T1. Here C2 has the greater value and C1 has the lower value. So the total value will be equal to positive. So need not revert to
multiply a negative sign. The rate of reaction is positive. Okay, so total अगर हम बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप रिप्रेजेंट करते हो बेटा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो आपको एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना पड़ता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म्स से। अगर आप निकालते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो टोटल में मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T। Here plus sign is used when the product concentration are used. The minus sign is used when the reactant concentrations are used. Okay. So let us study about the unit of rate of reaction. The unit of rate of reaction. Okay. So we know that rate of reaction R is equals to delta C divided by delta T. Here C is equal to concentration and the unit of concentration is equals to mole per liter divided by time, and the unit of time is equal to second. So we can write that mole liter inverse second inverse, or mole per liter is also called as molarity. So I can write molarity by second or molarity second inverse. Okay. So this is the unit of rate of reaction, that equals to mole liter inverse second inverse or molarity second inverse. If the chemical reaction is a gaseous chemical reaction, then the concentration is replaced by the pressure. We can write that in that case the unit of rate of reaction will be like this: R is equal to delta C by delta T. Here in terms of concentration we'll replace it by pressure. The unit of pressure is called atmosphere. So atmosphere divided by second, or I can write millimeter of Hg. So millimeter of Hg divided by second. So it will be like that: atmosphere into second inverse, or millimeter of Hg into second inverse. Okay, so this is the unit of rate of reaction. तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिलेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और मोलारिटी सेकंड इनवर्स। और इन टर्म्स ऑफ गैसियस रिएक्शन, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, अगर आपके पास गैसियस रिएक्शन है तो आप कंसंट्रेशन के बदले आप प्रेशर भी ले सकते हो, दैट विल बी एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स और मिलीमीटर ऑफ Hg सेकंड इनवर्स. ओके, नाउ we'll study about the types of rate of reaction. First one is average rate of reaction. Average rate of reaction means the total change in concentration divided by total time. So R average is equals to total change in concentration divided by total time taken. Okay, so if I am taking the reaction like this, the amount of reactant is decreasing like this. At T1 temperature concentration is C1, at T2 temperature concentration is C2. So here R average is equals to C2 minus C1 divided by T2 minus T1. Okay, तो average rate of reaction means फाइनल जो आपको प्रोवाइड किया होगा, जितना आपको टेक कंसंट्रेशन है कोई भी टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में जो आपको चाहिए होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस टाइम के हिसाब से आपका जितना कंसंट्रेशन होगा और इनिशियल टाइम के हिसाब से जितना कंसंट्रेशन होगा उसको आप माइनस करके डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, नाउ instantaneous rate of reaction. What do you mean by instantaneous rate of reaction? Instantaneous rate of reaction. That means the rate of reaction at a particular instant of time or at a particular concentration. A particular instant of time, if I am saying that at particular time t, what is the rate of reaction? इस particular time पर या इस particular concentration पर rate of reaction क्या है? That is होता है क्या पता? आपका instantaneous rate of reaction. So this is represented by R instantaneous. R instantaneous is equals to, that is delta C by delta T. But here I have a limitation. But that आपको
आपको यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए निकालना होता है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब टाइम इंटरवल जो आएगा दैट इज टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0। तो हियर r इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा c बाय डेल्टा t। अब डेल्टा t जब टेंड्स टू 0 आ गया मतलब आपकी जो चेंज इन टाइम आया मतलब टाइम इंटरवल वो अगर बहुत ही कम है तो ऑब्वियसली आपका जो जितना चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन और जितना चेंज हो रहा है टाइम वो भी बहुत ही कम चेंज होगा। तो आपका यहाँ पे r इंस्टेंटेनियस जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज dc डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। तो r इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dc बाय dt। ओके सो वो तो क्या था आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टडी अबाउट द रेट एक्सप्रेशन if I am taking a reaction A plus B gives C. So rate of reaction R will be equal to delta C divided by delta T, that is equal to plus minus delta C by delta T. So if I am taking concentration of reactant, it will be delta A divided by delta T. Okay, तो हम ले रहे हैं बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब लेते हैं तो आपको कौन सा साइन मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक नेगेटिव साइन। तो r will be equals to minus delta a divided by delta t। और मैं अगर b का कंसंट्रेशन लूं दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अगर मैं c का कंसंट्रेशन लूं, c मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, तो इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा प्लस delta c divided by delta t। This is the rate expression for the above chemical reaction। तो r is equals to plus minus delta c divided by delta t। तो अगर आप concentration of A लेते हो तो minus delta A by delta t, B लेते हो तो minus delta B delta t, अगर आप C लेते हो तो आप कौन सा साइन मल्टीप्लाई करोगे, प्लस, that will be plus delta c divided by delta c। तो इस तरीके से आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना होता है। अगर मैं बोलूं x plus y gives z plus w, तो रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, r is equal to plus minus delta c divided by delta t, that is equals to minus delta x because x is the reactant। तो जब आप इसको लिखोगे तो आपको नेगेटिव साइन लिखना पड़ता है, तो minus delta x divided by delta t। उसी तरह minus delta y डिवाइडेड बाय डेल्टा t। और अब आ जाएगा z जो होता है बेटा वो आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन होता है, प्लस साइन, दैट इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा t। और w भी है आपकी प्रोडक्ट, दैट इक्वल टू प्लस डेल्टा w डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो here the rate expression will be like this, r is equal to plus minus delta c by delta t, that equals to minus delta x by delta t minus delta y by delta t plus delta z by delta t, इधर plus delta w divided by delta t। तो ये आपका रेट एक्सप्रेशन है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर जो भी आप केमिकल रिएक्शन मैंने आपको दो दिया बेटा, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रिएक्शन का था यहाँ पे A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, B का भी 1 होता है और C का भी 1, इधर x y z w जो भी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं के अलग होता है तो अलग जब आएगा तो उसमें क्या करते हैं, जो भी आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम क्या करते हैं, आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने जब लिखा था कि x plus y gives z plus w, तो मैंने लिखा r is equal to plus minus delta c by delta t। तो अगर मैं रिएक्टेंट कर लूं जैसे कि x का तो मैंने लिखा minus delta x by delta t। ये जो minus delta x by delta t था, इस minus delta x by delta t जो होता है इसको बोलते हैं rate of disappearance of x। कितने अमाउंट पे x अपना कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, तो रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली डिसअपीयर करेगा। उसी तरह मैं इसको लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y।
सेम टाइप में मैं अगर इसको लिखूं बेटा, ये प्लस साइन है, प्लस मतलब वो क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Z। साइमल्टेनियसली मैं अगर W को लिखूं, दैट विल बी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ W। तो आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन लिखते हो तो उसमें से आपको पता लग सकता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस W, तो आपको पता लग सकता है कि उसमें से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब Z क्या है, W क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी क्या है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X is equal to rate of reaction, rate of appearance of Z is also equal to rate of reaction। अब किसी का भी कंसंट्रेशन चेंज ले लो, सबका कंसंट्रेशन चेंज आपस में इक्वल होते हैं और वो जो कंसंट्रेशन में चेंज है दैट इज इक्वल्स टू भी क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट आता है, तो अगर डिफरेंट आता है तो फिर जाके रेट एक्सप्रेशन थोड़ी सी अलग आता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, let's see, I'm taking example 2a plus b gives 3c। The rate expression R is equal to plus minus delta c divided by delta t। तो प्लस माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बेटा, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए लूं तो ए रिएक्टेंट है तो इसके लिए कौन सा साइन यूज करूंगा, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। पर यहाँ पे देखो आपका जो रिएक्शन कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्शन कर रहा है बेटा, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए will react to it 1 molecule of B and will produce 3 molecule of C। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन चेंज होगा तो एक साथ दोनों A मॉलिक्यूल का चेंज होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम बोलते हैं कि सिर्फ A मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल की बात नहीं चलेगी, सिर्फ एक मॉलिक्यूल अपना कितना कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, दैट इज होती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपका जो भी होती है मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेशन करते हो तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करते हो, डिवाइड करना पड़ता है। तो व्हेन वी एक्सप्रेस रेट एक्सप्रेशन वी हैव टू यूज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को एक्सप्रेशन करते हो तो वहां पे आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करते। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे तो यहां पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लूंगा बेटा दैट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी, बट यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसको मैं क्या करूंगा 2 में डिवाइड करूंगा, तो -1/2 इनटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहां पे मैंने 2 डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे एक ही ए मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज चाहिए होता है, दैट इज इक्वल टू होती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो R is equal to -1/2 into delta A by delta T। उसी तरह ये बन जाएगा माइनस डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा T। B का तो कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ ही, तो नॉर्मल जैसे लिखता था कोई ऐसे ही लिखूंगा। अब C जो आएगा यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3, तो C का वैल्यू मुझे लिखना क्या होता है बेटा प्लस डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T, लेकिन यहां पे 3 है तो मैं क्या करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे एक सी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज चाहिए होता है। तो ये जो आ जाएगा दैट इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखोगे आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो आप उसको डिवाइड करते हो। लेकिन जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को एक्सप्रेशन करते हो मतलब एक्सप्रेस करते हो तो वहां पर आपको यूज नहीं करना पड़ता स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो दिस वैल्यू इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यहां मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं किया, तो दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सिमिलरली दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल्स टू only this value will be equals to rate of appearance of C। तो यहाँ पे आप देखो जब मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की बात करता हूँ मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करता बेटा। तो ओनली इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन वी यूज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट वी express the rate of appearance or disappearance we do not use the stoichiometric coefficient। Okay, similarly we are taking another example।
let's see, 3x plus 5y gives 4z. Next, so here r is equal to plus minus delta c divided by delta t. So here x is the concentration of reactant. So if I am taking the concentration of x, then I will write minus 1 by 3 delta x divided by delta t. तो मुझे यहाँ पे 3 को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है. उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 by 5 इंटू डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा t. और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा प्लस, तो प्लस 1 by 4 डेल्टा z डिवाइडेड बाई डेल्टा t. ओके, so this is the rate expression for the above chemical reaction. तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की, तो ये जो टर्म है ये बन जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आपका x. ये जो टर्म है ये बन जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y. ये जो टर्म आ जाएगा दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू जो आएगा वो बिल्कुल क्या आता है, वो अलग आता है रेट एक्सप्रेशन से. तो अगर आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हो तो आपको ये जो आता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको डिवाइड करना पड़ता है. लेकिन अगर आप सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस की बात लिखते हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड नहीं करना पड़ता. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको पूछे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, तो आप यहाँ से रेट एक्सप्रेशन लिखोगे. रेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ले सकते हो. तो मुझे पूछा है x और y के बीच, सॉरी x और z के बीच में, तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x इनटू कितना आ जाएगा 1 by 3. तो हियर 1 by 3 इनटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x is equals to कितना आ जाएगा 1 by 4 into rate of appearance of z. ओके, सो ये आ जाएगा आपके x की और z की रेट ऑफ चेंज के बीच में डिफरेंस रिलेशनशिप. तो दैट इज इक्वल टू 1 by 3 to rate of disappearance of x is equal to 1 by 4 to rate of appearance of z. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ disappearance of x इनटू ये 4 मैंने इधर ले आया 4 इज इक्वल्स टू ये 3 उधर से ना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z. ठीक है, तो ये आपके अगर क्वेश्चन आते हैं फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, तो आप इस तरह से पहले रेट एक्सप्रेशन लिखो. रेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसमें पहले डिटरमाइन करो कि कौन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस. फिर उसके बाद आप वो आपकी रिलेशनशिप लिख के आप निकाल सकते हो. ठीक है, e by 4a plus b gives 5c plus 2d. इसका रेट एक्सप्रेशन बताओ. तो r इज इक्वल टू नॉर्मल जैसा आप लिखते हो डेल्टा c बाय डेल्टा t, तो ये प्लस माइनस में आएगा. तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ a लेते हो तो ये आ जाएगा डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा t माइनस में. अच्छा ये 3 by 4 है तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे. तो इसको जब डिवाइड करेंगे 1 by 3 by 4 इट विल बी इक्वल्स टू 4 by 3. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये 3 by 4 का आपको क्या करना है, माइनस 4 by 3 हो जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय डेल्टा t. उसी तरह ये है आपका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव. तो इधर डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा t, तो प्लस साइन. अच्छा ये 5 है स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1 by 5 हो जाएगा इधर. तो ये आ जाएगा उसी तरह प्लस 1 by 2 डेल्टा d डिवाइडेड बाय डेल्टा t. So this will be the rate expression for the above chemical reaction. तो रेट एक्सप्रेशन आपको इस तरह से लिखना होता है. अगर मैं बोलूं कि इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T इज इक्वल टू मेरा क्या बनेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A. उसी तरह ये माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T इज इक्वल टू रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ बी। सेम ये जो आएगा आपका प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये आपका बनेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ठीक, तो ये हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस और सी की रेट ऑफ अपीयरेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इनटू 4/3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इनटू 1/5। तो आप इसको लिखो 4/3 इनटू रेट ऑफ disappearance of A is equal to, ये बनेगा आपका 1/5 into rate of appearance of C। डन, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 उधर ले लो, तो ये आ जाएगा 5 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 into rate of disappearance of A is equal to 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into rate of appearance of C। This is the relationship between rate of disappearance of A and rate of appearance of C. Okay? अब मैं अगर पूछूं कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो, टाइम तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंट्रेंस में इतना कुछ करने में 2-3 मिनट चला जाएगा, बट इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है। आपको किसी दो रिएजेंट के बीच में रिलेशनशिप पूछा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे ए और सी के बीच में रिलेशनशिप पूछा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के बीच में क्या है आपकी रिलेशनशिप। उसी तरह आपको ए और डी के बीच में पूछ सकता है, बी और डी के बीच में, किसी के भी बीच में पूछे, आपको बस क्या करना होता है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आता है, इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 5, सॉरी, तो अगर मैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस पर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा इधर 5, तो ये आ जाएगा इधर 3/4, तो 4 को अगर इधर मल्टीप्लाई किया दैट इक्वल्स टू 20, तो 20 into rate of disappearance of A is equal to 3 into rate of appearance of C। आंसर वही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो बिना ये सब करते हुए। आपको बस क्या करना है, जो दो रिएजेंट आपका पूछा है उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये बिल्कुल आपकी विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन देता है ऐसा 3x + 4y gives 5z, the rate of disappearance of x is equals to r1, rate of disappearance of y is equals to r2, rate of disappearance of z is equals to r3। okay, so आपको पूछेगा which of the following relationship is correct, which of the following relationship is correct। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5r1 is equals to 3r3, सेकेंड ऑप्शन 4r1 is equal to 3r2 implies that, oh sorry, third option 4r3 is equal to 5r2, fourth option is equals to all the above। तो आपको इस टाइप की जो क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, इसको कैसे सॉल्व करना है, आप उसको तो रेट एक्सप्रेशन लिख के सॉल्व कर सकते हो। r is equal to delta c by delta t, this will be -1/3 delta x by delta t, -1/4 delta y by delta t, +1/5 delta z by delta t। तो फिर उसको फिर रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस करके आप बैलेंस करके लिख सकते हो। इसका ट्रिक क्या है, अब इधर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इक्वल टू r1, तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस r1, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y इज इक्वल टू r2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z इज इक्वल टू r3। तो मुझे पूछा है r1 और r3 के बीच में रिलेशनशिप, r1 और r3, तो मुझे करना क्या है बेटा, बस इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है उसको इंटरचेंज करना होगा, मतलब रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करना। तो 5 इधर ले आऊंगा, 3 इधर ले आऊंगा, तो 3
3R3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5R1, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब आ जाओ इधर R1 और R2 के बीच में, R1 और ये रहा R2, तो आप क्या करोगे R4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो 4R1 विल बी इक्वल क्या बन जाएगा 3R2, तो 4R1 विल बी इक्वल टू 3R2। दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आपको पूछा है R3 और R2 के बीच में रिलेशनशिप, R3 इज हियर, तो R3 और R2 के बीच में रिलेशनशिप 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4R3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 5R2, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल द एबव। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल ही कुछ सॉल्व नहीं किया आपने धड़ाक से सॉल्व किया पड़ा, ओनली 3 सेकंड या 4 सेकंड मैक्सिमम लगे, तो आपकी टाइम बचता है। तो ये ट्रिक होती है, आप क्या करो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है उसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो जो जिस दोनों के बीच में आपकी रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है। और अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बट कुछ फैक्टर होते हैं जो आपकी चाहेगा तो स्लो रिएक्शन को फास्ट बना सकते हैं पर फास्ट रिएक्शन को स्लो बना सकते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो स्लो रिएक्शन है वो स्लो क्यों है, फास्ट रिएक्शन जो है वो फास्ट क्यों है। तो कौन से फैक्टर आते हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो आपको मिलेगा दैट इज होती है कंसंट्रेशन, सेकंड फैक्टर जो आता है दैट इज टेंपरेचर, थर्ड फैक्टर जो आ जाएगा दैट इज pH ऑफ सॉल्यूशन, फोर्थ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आती है। नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर जो आएगा ये आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है हमारे जो कोर्स में है, VI जो आ जाएगा दैट इज कैटालिस्ट। तो हमारे कोर्स में कंसंट्रेशन है, टेंपरेचर है और एक कैटालिस्ट है, हम इन तीनों की इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है बेटा, इसके लिए एक लॉ होता है। तो पहले हम उस लॉ के बारे में पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपके पास जितने रिएक्टेंट होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा A गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। आपके पास जितने ज्यादा अमाउंट के कंसंट्रेशन होते हैं रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इफ आई एम सेइंग B gives product, तो rate of reaction is directly proportional to concentration of B. If I am saying X gives product, तो rate of reaction directly proportional to concentration of reactant, concentration of X. Okay. So according to law of mass action, if amount of or concentration of reactant increases, rate of reaction also increases. If I am taking 2A gives product, I can write this as A plus A gives product. तो rate of reaction directly proportional to concentration of A, इसके concentration के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी तरह इसके भी concentration के ऊपर डिपेंड करेगा। तो R directly proportional to आ जाएगा A का concentration का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग 3B gives product, तो this means B plus B gives product. तो here rate of reaction directly proportional to B का concentration into B का concentration, और इसके भी B का concentration भी directly proportional आएगा। तो R directly proportional to B का concentration into B का concentration into B का concentration, तो ये टोटल आ जाएगा B का concentration का क्यूब।
तो आप इधर देख सकते हो यहाँ पर 2a था गिव्स प्रोडक्ट, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है वो a का कंसंट्रेशन टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 3b गिव्स प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू b का कंसंट्रेशन टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इधर आया a का स्क्वायर, उधर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है b का क्यूब। ओके, तो यहाँ पे पता लग रहा है कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वगैरह होता है तो आप वहां पे आप क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 2a प्लस 3b गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आएगा a का कितना आएगा बेटा स्क्वायर, a का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, उसी तरह b के कंसंट्रेशन के कितना आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो टोटल में अगर आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन लिखते हो तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा a का कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड b का कंसंट्रेशन का क्यूब। तो आप अगर टोटल ये लिखना चाहते हो एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट ये आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपके पास जितने रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट लेना पड़ता है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब a का कंसंट्रेशन इनटू b का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है हम उसकी पावर के हिसाब से यूज करेंगे, a का टू द पावर 2 एंड b का टू द पावर 3। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन आता है ये एक थियोरेटिकल कांसेप्ट होता है बेटा। थियोरेटिकल कांसेप्ट मतलब क्या है, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया है, ना ही आपने रिएक्शन किया, आप बस देख रहे हो कि एक्चुअली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उस इक्वेशन से आपने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लाके बस चिपका दी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ना ही आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप बस एक थियोरेटिकली लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर एंड b का क्यूब। ठीक है, मतलब फिर भी जो भी है लास्ट में तो हमें ये मिलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लॉ ऑफ मास एक्शन की पूछता है, एक्चुअली स्टेटमेंट पूछता है तो आपको वहां पे लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient as in the balanced chemical equation. Okay, done. उसी तरह एक दूसरा लॉ होता है that is called as rate law। देखते हैं वही कंसंट्रेशन कैसे एक्ट करता है, उसके लिए एक लॉ होता है दूसरा, जैसे हमने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी तरह दूसरा लॉ that is called as rate law। ठीक है, ये जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ एक्चुअली क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हो कि एक्चुअली में किस टाइप से डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे जो रिएक्टेंट होते हैं उनके कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अगर मैं बोलूं कि एक जनरल रिएक्शन होती है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलेगा भाई, ये तो बैलेंस हो गया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा A का कंसंट्रेशन टू द पावर A एंड B का कंसंट्रेशन टू द पावर B। तो ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन के बराबर। लेकिन ये जो थ्योरी आता है बेटा ये आपका एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, मतलब यहाँ पे आप कुछ एक ऑब्जर्व नहीं किए हो ना ही एक्सपेरिमेंट करते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन a का टू द पावर a भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी आपने नहीं देखा, तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्व करके रेट ऑफ रिएक्शन की मतलब एक्सप्रेशन लिखते हो तो ऐसे आएगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का कंसंट्रेशन का कुछ भी पकड़ लो अल्फा, उसी तरह b का कंसंट्रेशन का कुछ भी हो सकता है पकड़ लो बीटा, ये अल्फा बीटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकते हैं और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करके लिखते हो मतलब आप ऑब्जर्व करके लिखते हो तभी जाकर जो लॉ बनता है दैट इज कॉल्ड एज रेट लॉ। तो रेट लॉ भी वही बोलता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ rate of reaction directly proportional to product of concentration of reactant raised to the power the number that may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। तो ये जो नंबर आपके आएंगे ये stoichiometric coefficient के इक्वल भी हो सकता है, stoichiometric coefficient के इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हुआ। ठीक है, तो ये आपका होता है दो लॉ होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, दूसरा होता है रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ के बीच में डिफरेंस क्या आती है, लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, इसका मतलब आप बस एक
केमिकल रिएक्शन लिखते हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उससे देख के आप रिएक्शन लिखते हो। लेकिन जो आपकी रेट लॉ है, रेट लॉ में आप क्या करते हो, उसमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है, आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करके एक्चुअली में ए के कंसंट्रेशन की कितने पावर के ऊपर डिपेंड करता है वो आप लिखते हो। ठीक है।